In the previous video, I have covered the theoretical portion of amalgamation where I have explained you the meaning of amalgamation. That is, when two or more than two companies unite or come together, then this process is called amalgamation. Like एक existing company दूसरे dissolve हो चुकी company को acquire कर लेती है, या दो कंपनियां दोनों डिज़ोल्व हो चुकी हैं और तीसरी नई कंपनी का फॉर्मेशन करती हैं। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में अबाउट द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी के बारे में। ट्रांसफरर वह कंपनी है जो डिज़ोल्व होकर दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मिल जाए, या दो कंपनियां डिज़ोल्व होकर नई कंपनी फॉर्म करती हैं। तो जो कंपनी डिज़ोल्व हो चुकी है उसे ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं, और जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई है उसे ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं। So today I will be discussing about the purchase consideration. Purchase consideration is the amount or price paid by the transferee company. जैसे मैंने पिछले आपको क्लास में बताया था कि ट्रांसफरी कंपनी मीन्स न्यू कंपनी और द बायर कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी फॉर परचेज ऑफ इट्स बिजनेस, दैट इज टर्म्ड एज अ परचेज कंसिडरेशन। और वो प्राइस जो एग्जिस्टिंग कंपनी या न्यू फॉर्म कंपनी ट्रांसफर कंपनी को उसके बिजनेस परचेज करने के बदले में देती है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, परचेज कंसिडरेशन इज रेफर्स टू द शेयर्स, other securities and cash amount given by transferee company to the shareholders. The shareholders can be equity shareholders or preference shareholders of the transfer company, means it includes only the payment made for the shareholders of the transfer company. अगर आप किसी भी कंपनी के डिवेंचर्स या क्रेडिटर्स या अदर उसके आउटसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, वो आप परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इज any payment made other than the shareholders like debenture holders or creditors, or any payment for discharging the outside liabilities, it will be not considered in purchase consideration. So जैसे कि देखा आपने, तो what do you mean by purchase consideration? आप जो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को उनके बिजनेस के बदले में देती है, जब उन्होंने परचेज़ किया उनकी कंपनी को, उसके बदले में जो अमाउंट पे करे या कुछ शेयर्स दे, उसको हम लोग कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आप लोगों को 4 मेथड्स पढ़ने हैं, दैट इज़ द नेट एसेट मेथड, net payment method, share exchange method and lump sum method. I will be explaining you all these 4 methods one by one. Now I will be explaining you first method, that is net payment method. In this method, any payment made other than shareholders like debenture holders or creditors, or any payment for discharging the outside liabilities by issuing shares or debentures or cash are not included in purchase consideration. ये साफ साफ बता दिया गया आपको कि आप शेयर होल्डर के अलावे किसी को भी पेमेंट करते हैं, उसको आप परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट वन, ट्रांसफरी कंपनी can issue shares and debentures at par or at premium or at discount to the transfer company, and if there is no information, in that case amalgamation in the nature of merger, share of transfer company as well as the transferee company shall be valued at the paid up value, and in case of amalgamation in the nature of purchase, share will be valued at market price. If transferee company agrees to pay cost of dissolution, cost of winding up or liquidation cost, such payment will still not be included in purchase consideration. अगर ट्रांसफरी कंपनी या जो बायर कंपनी है वो अग्री करे कि ट्रांसफ़र कंपनी के कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप की पेमेंट कर दे,
तो दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन. जब आप कैलकुलेट करेंगे आप उसको उस समय नहीं लेंगे. You have remember the three things in the net payment method. First one is that purchase consideration include only payment made to the shareholders. And second one, payment to debenture holders or the creditors by the transfer company are not at all included in the purchase consideration. And third, the liquidation expenses paid by the transfer company will also not be included in the purchase consideration. तो आपको इस समय इस मेथड में ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी मैंने तीनों पॉइंट बताया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको जब कंसिडर करेंगे तो आप उसको ज़रूर अपने माइंड में रखेंगे. नाउ नेक्स्ट मेथड इज नेट एसेट मेथड. From the total of all the assets purchased by the transferee company or the buyer company, total of all the liabilities is deducted to ascertain the net value of the asset or the property. जो भी assets है ट्रांसफर का उसमें से जो उसकी लाइबिलिटी है उसको डिडक्ट करके जो भी नेट वैल्यू आता है आपके एसेट्स का आता है, दैट नेट वैल्यू इज डिटरमिन्ड एज अ एक्चुअल परचेज प्राइस इन दिस केस इन द मेथड ऑफ नेट एसेट मेथड. द नेक्स्ट मेथड इज intrinsic method, intrinsic value or share exchange method. In this method, purchase consideration is based on ratio in which the share of transfer company are to be exchanged the share of the transfer company. That's why it is called as a share exchange method. इसको इसलिए बोला गया क्योंकि चाहे तो ट्रांसफ़र कंपनी के 2 शेयर या 5 शेयर के बदले चाहे तो वो आपको एक्स्ट्रा शेयर इशू कर सकती है, 2 के बदले 5 दे सकती है, 5 शेयर्स के बदले आपको 10 दे सकती है. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी. तो ये जो शेयर्स है आपके जो रेशियो है इज टोटली बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर. सो दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो शेयर्स को डिसाइड करती है. Now the next method is lump sum payment method. In this method, the price consideration is clearly specified. सबसे easy method है चारों में से, जिसमें हमको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. Suppose if M Limited company is agreeable to buy the business of Y Limited company at a price of ₹50 lakh, then this is an example of lump sum payment method. जो आपको एम लिमिटेड कंपनी है वो वाई लिमिटेड कंपनी के बिजनेस को परचेज करेगी और बिना कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए वो टोटली उन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि वो उनको 50 लाख रुपए देगी और उनको बिजनेस को परचेज कर देगी. बट अंडर सच सर्कमस्टांसेस इट वुड बी अज्यूम्ड दैट दिस परचेज कंसिडरेशन इज बीइंग गिवन ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स. क्योंकि मैंने शुरू से बताया है जो भी आप पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर को वही आपको परचेज कंसिडरेशन में कंसिडर करेंगे. अदरवाइज जो भी पेमेंट करते हैं डिवेंचर्स को, क्रेडिटर्स को और आउटसाइड लायबिलिटीज़ को, उसको आप भूल से भी जब कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन उसको नहीं लेंगे आप.